called it as sickle cell anemia. So now here it is written that why this defect is caused, how this defect is caused. So if I'm talking about in the biological sense, then this defect is caused due to substitution of glutamic acid by valine at sixth position of the beta hemoglobin molecule. Now you have to understand what this glutamic acid and valine acid, these are nothing but the amino acids, and here what happens, there is substitution of, means valine ke position pe what came, glutamic acid came, and it is at the sixth position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. Please look over here, is that if you count from here, then there is 1 2 3 4 5 6. At sixth position it is glutamic acid, right? But this acid get replaced by valine at the sixth position. Okay, and this chain is the beta globin chain of the hemoglobin molecule. This is what it's trying to say. Now what happens, अभी वहां पे शिफ्टिंग हुआ है, तो वहां पे आप लोग आगे पढ़ोगे कोडॉन होता है। कोडॉन जनरली 3 लेटर से बना होता है, तो वो 3 लेटर्स कौन कौन से होते हैं आगे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इतना सिर्फ याद रख लो कि GAG से GT बनता है। नाउ एक चीज याद रखना है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन, what make to change that shape of the biconcave to elongated sickle shape. Generally what happens, due to low oxygen tension के कारण वो जो RBC की shape है that get changed from the biconcave to the elongated sickle like structure. Now यहाँ पे एक चीज याद रखना है, this is the autosomal linked recessive trait. Now generally this transmitted from the parents to the offspring, then both the parents are the carrier for the gene. Now एक चीज याद रखना है कि this gene is controlled by a single pair of allele, that is HBA. It is a representation, just keep the one thing in your mind that this is the representation, and here this A is not affected, but S is affected. So this disease is controlled by single pair of, that is, it is given over here. Now if we talk about the 3 pairs, then what would be the 3 possible genotypes? Either it will be HBA, HBA, yeah, HBA, HBS, HBS, HBS. It can be so. So if I'm talking about HBA and HBA, then it will be non-affected. It would be unaffected. If I'm talking about HBA and HBS, then it would be carrier. And if I'm talking about HBS and HBS, then it will be affected. So now if I talk about see, here it is written that HBS showed the disease phenotype. Now here you might be not able to visualize it more clearly. I'll just highlight in this thing. Now see, this heterozygous means this is apparently unaffected, okay, but they are the carrier for the disease. That's what I told earlier as well, that this is the carrier, because this HBS is what, it is the carrier for the gene for the disease. So it is unaffected, but it is carrier. Understood? Now this what is the meaning of this? The main aim of keeping this picture over here is that the shape of RBCs are generally biconcave. It is of this shape, okay, but when this polymerization of when it undergo polymerization under very low oxygen, that time what happens, it's there is a change in the shape. What makes it biconcave? That it changed from the biconcave to the sickle shape. This is what wants to say. Now this is what they are in sickle cell anemia. Understood? Shall I proceed? Understood? Yes? 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 आपको समझ में आया? Shall I proceed? Give me reply. Yes, ma'am. Okay, thank you, Sonali, so much. Now
Now we'll talk about phenylketonuria. Phenylketonuria is the disease. You know, phenylketonuria is the disease related to we can related to this what I can say. Yeah, here there is a change in the enzyme. What exactly? See, generally this disease started from the by birth only. That's why it is written that inborn error of the metabolism. Now it is an autosomal recessive trait. So what you have to understand about it is like, generally what happens, there is one enzyme that convert the amino acid phenylalanine into trypsin. But what happens, due to absence of this enzyme, what happens, this phenylpyruvic acid, this accumulated, this thing phenylalanine is accumulated and get converted into phenylpyruvic acid and the other derivatives. Generally what happens, जो enzyme amino acid that is phenylalanine को tyrosine में convert करता है, that जो एंजाइम है वही अफेक्टेड हो जाता है. तो इसके कारण क्या होता है कि फिनाइलएलानाइन का अकम्प्लेशन होता है, और अकम्प्लेशन होने के कारण इट कन्वर्टेड इनटू phenylpyruvic acid and the other derivatives. Now how can we analyze whether that small infant is suffering from the phenylketonuria or not? So when the cloth that kid has weared, तो उसमें क्या होता है, you will observe urination के समय you will observe darkish blue color comes out. So that indicate that that person is suffering from the phenylketonuria. And generally, see, they have also written over here like these are also excreted through urine because of poor absorption by the kidney. So kidney part is also affected due to absence of this enzyme. This is what in phenylketonuria. And next is the thalassemia. थैलेसीमिया आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए. थैलेसीमिया इज द ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर. जनरली दिस इज वन ऑफ द ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज. सो इसमें क्या होता है, किसी एक ग्लोब्यूल मॉलिक्यूल के कारण या उसके रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस के कारण क्या हो जाता है, ये डिजीज होती है. So it occurs either mutation or deletion result in reduced rate of synthesis of beta globin. मतलब किसी either यहाँ पे म्यूटेशन हुआ होगा या डिलीशन हुआ होगा, किसी कोडॉन का या किसी भी सीक्वेंस का डिलीशन हुआ होगा, जिसके कारण it leads to reduced or low synthesis of globule chain of hemoglobin. And anemia is a characteristics of this disease. So thalassemia is of two types. First is the alpha thalassemia and other is the beta thalassemia. So if I talk about specifically about alpha thalassemia, then alpha thalassemia, what happens? The production of alpha globin chain is affected. Now they are controlled by two closely linked gene, that is HBA1. Actually ये जो है ना, these are the genes that are present on chromosome number 11. You need to remember about where that alpha thalassemia take place or where that beta thalassemia take place. So chromosome number 16 and chromosome number 11, these two are important. So it is controlled by HBA1 and HBA2 on chromosome 16. And why it is happening? Because of either of mutation or deletion. If I'm talking about the beta thalassemia, तो beta thalassemia में beta globule chain affected होगा, और ये कहाँ पे हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे. तो अभी ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है. देखो, पहला तो है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में. अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा, मैम दोनों में भी तो ग्लोबिन मॉलिक्यूल पे ही डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं. सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बोथ ऑफ देम? सो if I'm talking about thalassemia ना, तो thalassemia is the quantitative disorder. Why quantitative disorder? Because इसमें क्या हो रहा है कि we are talking about the quantity alpha and beta, यहाँ पे synthesis के रेट को कम किया जा रहा है, ठीक है. बट वही बात अगर मैं सिकल सेल एनीमिया की देखूं तो वहां पे तो सिंथेसिस हो रहा है, बट वहां पे क्या हो रहा है कि डिलीशन हो रहा है, इंसर्ट मतलब शिफ्टिंग हो रही है. ग्लूटामिक की प्लेस यहाँ पे जा रही है, वेलिन की प्लेस में जा रही है, तो वहां पे 6 ग्लोबिन चेन पे इंटरचेंजिंग हो रही है.
These are the two differences. So if they ask you what is the difference between the thalassemia and the sickle cell anemia, then you need to mention that it is a quantitative problem of synthesizing very few globule molecule, या फिर sickle cell anemia में हम ये बोल सकते हैं कि it is a qualitative, because यहाँ पे we are discussing about the production of the synthesis, problem of synthesizing. ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट थिंग आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. पहले तो हम लोगों ने मेंडेलिव डिसऑर्डर पढ़ा. तो मेंडेलिव डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर पढ़े? हम लोगों ने सबसे पहले हेमोफीलिया पढ़ा, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, फिनाइलकीटोनुरिया पढ़ा एंड थैलेसीमिया पढ़ा. दीज ऑल वी स्टडीड अंडर मेंडेलियन डिसऑर्डर. अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा? आइदर डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम होगा या इंसर्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा. तो जनरली क्या होता है कि देखो यहाँ पे आपको तीन चीजें याद रखते हैं. व्हाट इज एनाप्लॉइडिटी, व्हाट इज इन ये ट्राइसोमी एंड व्हाट इज मोनोसोमी. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनाप्लॉइडिटी, तो ये आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, याद रखना हमेशा. सेग्रेशन ऑफ chromatids during cell division that result in either gain or loss of chromosome, उसको बोलते हैं एनाप्लॉइडिटी. जहाँ पे क्रोमेटिड्स का सेल डिवीजन में, जनरली सेल साइकिल में जब क्रोमेटिड्स का डिवीजन होता है, तो उस डिवीजन से समटाइम देयर इज आइदर गेन और लूज ऑफ द क्रोमोसोम. सो दैट थिंग इज कॉल्ड द एनाप्लॉइडिटी. नाउ व्हाट इज ट्राइसोमी? ट्राइसोमी का मतलब होता है कि देयर इज एडिशन ऑफ वन पेयर ऑफ वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, सो विल राइट इट एज अ 2n+1. फॉर मोनोसोमी देयर इज deletion or lack of one pair of the chromosome. So we'll write 2n-1. Understood? Got my point? Yes? जवाब दो यार, क्या हो गया? थक गए क्या दिन भर पढ़ के? यस मैम. यस मैम. अच्छा, सुबह से लेक्चर हो रहे हैं क्या? सुबह से लेक्चर हो रहे हैं क्या? नो मैम. देन फिर आवाज क्यों नहीं है, एनर्जी क्यों नहीं है? हाँ, चलेगा. नाउ विल टॉक अबाउट द डाउन सिंड्रोम. ठीक है, सो डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी ऑफ 21 भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे एडिशन हुआ है ना, 2n+1 हुआ है. तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 में देयर इज वन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. ये डिसऑर्डर फर्स्ट टाइम लैंगडॉन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. तो जनरली इसमें जो ये भी इन्फेंट में ही होता है. तो जनरली जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उनके उसका जो हाइट होता है वो बहुत छोटी हो जाती है होती है. उसके बाद स्मॉल राउंड व्हाट वी कैन से स्मॉल राउंड हेड होता है. फिर उसकी टंग जो होती है फरो होती है. फरो का मतलब डीप होती है टंग. एंड आफ्टर दैट पाम जो होता है ब्रॉड होता है. जैसे हम लोग अपना पाम देखेंगे तो इट इज थोड़ा बहुत बल्ज्ड, थोड़ा बहुत डीप है. थोड़ा सा यहाँ पे व्हाट आई कैन से क्रेसेस है. बट जो इनके होते हैं वो कैसे पाम ब्रॉड होता है. एंड इनके जो क्रेसेस होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हाथ में, आप लोगों ने अगर गौर फरमाया होगा तो आपके जो ये टिप्स होते हैं ना, टिप्स ऑफ योर फिंगर्स, तो वहां पे आपने देखा होगा सर्कलिंग हो रही होती है. एंड यू विल ऑब्जर्व ओनली वन सर्कलिंग पैटर्न इन वन फिंगर. देयर आर नॉट मल्टीपल सर्कलिंग पैटर्न. बट पाम में इनके क्या होता है, देयर आर सो मेनी क्रेसेस. इन आवर पाम देयर आर लिटिल बिट ऑफ क्रेसेस, बट इनके पाम्स में बहुत सारे क्रेसेस का मतलब लाइंस होती है.
फिर देखा जाए तो ये लोग फिजिकली, साइकोमोटर और मेंटली डेवलपमेंट भी इनका रिटार्डेड होता है। जैसे हम लोगों में डेवलपमेंट होती है, we come across, we face development in our thinking ability, our bone increases, our height increases. There are so many developments or changes in our physical, mental development, right? But इनमें क्या होता है, these all mental developments get retarded. ठीक है, ये होता है डाउन सिंड्रोम। देन होता है क्लिन फ्लिंटर सिंड्रोम। सो ये तो यहाँ पे इस बच्चे की फोटो दे रखी है। सो फ्लैट हेड होता है, फिर उसकी जो फिंगर टिप्स होती है ना, यू विल ऑब्जर्व सो मेनी लूप्स। बट हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम लोग, तो हम लोगों के ओनली वन लूप आपको एक फिंगर पे दिखेगी, बट इनमें देयर आर मल्टीपल लूप्स ऑन देयर फिंगर टिप्स। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड, पाम की क्रिसेस आर मेनी। देन इनकी बिग और रिंकल्ड टंग होती है। फिर इनको कंजाइटल डिसऑर्डर भी होता है, हार्ट डिसऑर्डर भी होता है। इनका जो ये दिस इज बोन स्कल जो होता है, दैट इज आल्सो ब्रॉड। किसी ने वो मूवी देखी है, औरो वाली मूवी? आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम। औरो वाली मूवी देखी है अमिताभ बच्चन जी की? यस, पा, या पा, द नेम ऑफ दैट मूवी इज पा। देखिए, यस। कहाँ हो गए सब, सो गए क्या? हेलो, हेलो। यस मैम। तो उसमें जो पर्सन है उसको कौन सी डिजीज है जरा पता करके आना, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगी, ठीक है? अभी ये क्लीन फ्लिंटर डिस सिंड्रोम क्या होता है? क्लीन फ्लिंटर सिंड्रोम में जनरली इनके पास, जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इनके पास 47 क्रोमोसोम्स, दे हैव वन एक्स्ट्रा। देन सो इनमें क्या होता है, देयर आर वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, सो देयर दिस थिंग विल बी कैरियोटाइप। क्या होगा उनका? 44 प्लस XXY, वन एडिशनल X क्रोमोसोम होते हैं। सो इनका किस तरह होता है, उनके बॉडी की डेवलपमेंट होती है ओवरऑल मैन की बॉडी की तरह डेवलपमेंट होती है। इनके पास जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसकी तरह आ जाते हैं, फीमेल की तरह डेवलपमेंट होती है। मतलब कि मस्कुलिन बॉडी लाइक अ मैन, और फीमेल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, जिसको गाइनोकोमेस्टिया बोला जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होती है। इनका जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है वो वो मेल की तरह होता है, और सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। सो बोथ जो मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो इनमें आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में जनरली देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सो इसमें क्या हो जाएगा, मोनोसोमी होगा। मोनोसोमी का मतलब 45, दैट इज XX, 44 प्लस XO। नाउ याद रखना, इनमें जो फीमेल्स होती है दे आर रेडियोमेंटरी। रेडियोमेंटरी मतलब उनकी ओवरीज जो होती है वो अनडेवलप्ड होती है, और इनके पास जो अदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ना एक फीमेल में, वो लैक होते हैं। उसको बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। अगर आप लोग एक पिक्चर देख रहे होंगे, दैट इज ऑफ क्लीन फिल्टर। क्लीन फिल्टर जो जनरली ये लोग होते हैं ना, ट्रांसजेंडर्स आर क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है उनको। तो इनका प्यूबिक प्लेस फीमेल की तरह होता है। सॉरी, आई वाज some part is female, half excretory part is of male, and half excretory part is of female. Okay, then next thing is as it is shown that they show the breast development. ठीक है, and their height is taller, their height is more than the average height. And if we talk about the Turner syndrome, so Turner syndrome में they do not have any menstruation, since they don't have any since they lack the secondary sexual character. So generally their height is also small, and development जो breast की होती है that is also underdeveloped. Got my point? Yes. Yes ma'am. Yes, Abhi ma'am. this is end of this chapter. Okay, now tell me, do you have any doubt in this chapter? If not, then we'll proceed. Just recall all the points. If you are making everyday points whenever our class conducted,
So just go through all the points and I'll give you 5 minutes and let me know if you have any doubts. So we'll go through that doubt first and then we'll move ahead. फटाफट से हाँ. Yes, कोई डाउट नहीं है. अंजलि, अंजलि, Yes, ma'am. कोई डाउट नहीं है. मैम इंडोमिनेंस और कोडोमिनेंस वाला एक बार शॉर्ट में बता दो फिर से. यस, और कोई? गायत्री, मेघा, कोई डाउट नहीं है. मैम होमोजाइगस मतलब वापस समझा दीजिए. और जल्दी जल्दी डाउट्स बताओ ताकि हम एक बार फिर से डिस्कस करें उन पॉइंट्स को. अब मैं एक एक का नाम नहीं लेके पूछूंगी, फटाफट से बताओ जैसे अभी 2 लोगों ने मुझे बताया. डिस्कस अबाउट दोस पॉइंट्स. यस, Sonali, Preeti, Pratiksha, Neha, you don't have any doubt? Yes. Neha? Ma'am, I have some network problem. The screen is not clearly visible. Still it is not visible. So what about the other? Is my screen is visible to them or same issue is arising in their side only? Their side as well? Ma'am, it's visible. Visible. Okay. Just check your network, dear. What about rest? Only 2 girls has responded. Why it is happening? Pratiksha, I didn't understand. Just go because it is very important. Okay, only 3 doubts are there. One more doubt is there. What is it? Ma'am, in sickle cell anemia, please explain the third point. Okay. Anyone else? Because I can't repeat this whole chapter again. That's why it's better that I'll clear all doubts right now. I think that much doubt is there. So let's go by one. So I'm just going through each and every topic. Just let me know if you have any doubt. Along with me, you also go through each and every point. I'll wait for 1-2 minutes. If you have any doubt, ask me at that point. Otherwise, we'll proceed. Let's start with the Turner syndrome. So as no doubt, then go to Klinefelter syndrome. No doubt. Then Down syndrome. No doubt. Chromosomal disordermy. You all understand about the aneuploidity?
देन थैलेसीमिया में कोई डाउट नहीं है, देन फेनाल्कीटोनुरिया में कोई डाउट नहीं है, देन सिकल सेल एनीमिया में थर्ड पॉइंट, this defect is due to mutation in certain genes present on the X chromosome. Okay. Can anybody tell me what does, अच्छा ये मुझे बताओ, ये जो मैंने ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या है? This means X के ऊपर raised to C है, ठीक है? अच्छा आपको किस में डाउट है? सिकल सेल एनीमिया में ना, सिकल सेल एनीमिया में थर्ड पॉइंट। ओके देखो होता क्या है कि जनरली जो आरबीसीज होती है ना, हमारे आरबीसीज के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का टेंशन जो होता है वो वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जिसपे म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेशन का मतलब यहाँ पे क्या शिफ्टिंग हुई है ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इसको बोलेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है। ग्लूटामिक एसिड बाइवेलिन, मतलब ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन बैठ गया? वैलिन बैठ गया। तो अभी यहाँ पे बोलने का मतलब है, अभी तो जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है ना, वो क्या परफॉर्म करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है इट विल फॉर्म मोर एंड मोर म्यूटेंट हेमोग्लोबिन, ठीक है। सो पॉलीमराइजेशन किस अंडर व्हाट टेंशन ऑफ ऑक्सीजन इट इज परफॉर्मिंग? अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन ये परफॉर्म करता है, ठीक है। जनरली जो आरबीसी होता है वो गुड एक मॉडरेट लेवल ऑफ टेम्परेचर के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है ना, बट यहाँ पे जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है ना, इट अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो शेप है ना कॉनकेव बाइकॉनकेव आरबीसी का, वो शेप जो हो रहा है वो अंदर से बहुत ज्यादा, मतलब इट इज बिकम सिकल शेप। अभी समझ में आया? यही बताया है थर्ड पॉइंट में, समझ में आया? यस मैम। चलो नेक्स्ट थिंग, कलर ब्लाइंडनेस में कोई डाउट? हीमोफीलिया में कोई डाउट? मेंडेलियन डिसऑर्डर में कोई डाउट? ऑटोसोमल रिसेसिव में कोई डाउट? डोमिनेंट में, जेनेटिक डिसऑर्डर में कोई डाउट? म्यूटेशन में, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द हनी बी। इसका मैं पिक आपको भेजती हूँ, how that this thing males produce sperm by mitosis, they do not have parents, so not the son but they have grandson and grandfather. बताती हूँ how it happens. So sex determination में कोई डाउट नहीं है। आप भी गो थ्रू करते जाओ ताकि आप आइडिया मिलेगा कहाँ है कहाँ नहीं। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डाउट है, राइट? यस, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ वेट सेकंड, अच्छा है, किसको डाउट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का? एक बार नाम बताना मुझे। मैम अंजलि। अंजलि, ओके अंजलि। अभी देखना ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। जब हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था ना मेंडल का, दैट टाइम व्हाट वी टुक टॉल प्लांट एंड डॉग प्लांट, वी गॉट 3:1 रेशियो। एंड अगर मैं देखती हूँ 1:2, अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो देखती हूँ 1:2:1 रेशियो मिला था मुझे। सो यहाँ पे क्या होगा पता है, वहां पे 1:2:1 रेशियो मिला था। अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है पता है, उन्होंने व्हाइट फ्लावर लिया और रेड फ्लावर लिया, ठीक है। रेड और व्हाइट फ्लावर का उन्होंने ब्रीडिंग करवाई, हाइब्रिडाइजेशन करवाया।
तो जो एक नया फ्लावर मिला दैट इज ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ both of them, that is red flower and white flower. So I got as a pink flower. So I was expecting to get something and I got something. ठीक है. So यहाँ पे मुझे रेशियो तो ठीक है, रेशियो इज लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. बट यहाँ पे देखा जाए तो रेशियो मुझे 1:2:1 मिला है, लेकिन यहाँ पे मुझे तो वहां पे कैसे मिले थे, मुझे वहां पे एक टॉल मिला था, एक डॉट मिला था, और दोनों क्या किस तरह मिले थे जब मैंने फिनोटाइप निकाला था 1:2:1 मिला था. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे एक पिंक मिल रहा है, एक व्हाइट मिल रहा है और एक रेड मिल रहा है. जो पिंक, दो पिंक मिल रहे हैं, एक रेड एक व्हाइट मिल रहा है. सो यहाँ पे जनरली यही तो इन्होंने बताया है कि जो आर है ना वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हुआ है. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर वॉज नॉट कंप्लीटली डोमिनेट ओवर स्मॉल आर. स्मॉल आर इज व्हाट? स्मॉल आर इज व्हाइट, कैपिटल आर इज red, and this made it possible to distinguish this R and R as pink from कैपिटल R and small r. मतलब रेड और व्हाइट से डिस्टिंग्विश कर रहा है. क्यों यहाँ पे कर रहा है? क्योंकि जो R था दैट इज ऑफ रेड, वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हुआ है स्मॉल r से, मतलब व्हाइट से, इसीलिए वो इंटरमीडिएट का कलर दिखा रहा है. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि प्रॉपरली डोमिनेंस शो नहीं हो रहा है, इंटरमीडिएट ऑफ देम मुझे शो हो रहा है. अभी समझ में आया? यस मैम. क्लियर है? कोई डाउट है? तुम्हारा डाउट क्या था अंजलि? क्या किस चीज पे आप नहीं समझ पा रही थी अंजलि? यस अंजलि. मैम नहीं आ रहा था समझ में, थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी. अभी क्लियर हुआ? यस मैम. ओके. अभी देखो कोडोमिनेंस क्या होता है. कोडोमिनेंस में अभी तक हमने देखा कि आइदर पेरेंट का कोई एक रिसेंबल होता है या तो इंटरमीडिएट रिसेंबल हो रहा है. ठीक है. डोमिनेंस में हमने देखा कि जो डोमिनेंट है वो रिसेंबल हो रहा है, वो पूरी तरह से अपना डोमिनेंस ही दिखा रहा है. लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या दिखा कि डोमिनेंस इज नॉट एबल टू, मतलब दैट डोमिनेंट कैरेक्टर इज नॉट एबल टू सप्रेस द रिसेसिव वन. जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज इंटरमीडिएट ऑफ देम, isn't it? Now अभी मैं अगर कोडोमिनेंस की बात करूं तो कोडोमिनेंस का एक गुड एग्जांपल है दैट इज रेड ब्लड सेल्स दैट इज ABO. तो इसमें क्या होता है कि एक जीन होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय, मतलब जो ABO ब्लड ग्रुप होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन जिसको I बोला जाता है. ठीक है. तो जनरली जो RBC होते हैं ना, RBC के ऊपर एक शुगर होता है, उस शुगर पे आके क्या बैठते हैं, दूसरे पॉलीमर्स आके बैठ जाते हैं, दूसरे एंटीजेंस आके बैठते हैं. दैट कैन बी IA, IB एंड I. सो अगर अलील है IA और IB तो वो लोग प्रोड्यूस करेंगे शुगर, बट सिंस दे आर IA एंड IB ना, दे आर नॉट IA एंड IA. इफ दे वुड बी IA एंड IA देन तो वो सेम रहेंगे. बट यहाँ पे IA इज डिफरेंट एंड IB इज डिफरेंट, सो दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट शुगर्स. ठीक है. जबकि जो स्मॉल IA है ना वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है. अब एक याद रखना, और जो IA और IB है ना वो डोमिनेंट होते हैं I से. तो यहाँ पे अगर IA और IA होगा, अगर IA के साथ स्मॉल I का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कौन एक्सप्रेस करेगा? IA एक्सप्रेस करेगा. अगर IB के साथ स्मॉल I का करेंगे तो IB एक्सप्रेस करेगा. अगर मैं IA और IB को टुगेदर लूं तो मुझे क्या मिलेंगे कि दोनों ही डोमिनेंट है. दोनों विल प्रोड्यूस देयर डिफरेंट शुगर्स. ठीक है. दे विल प्रोड्यूस देयर own sugars. So here this is because of codominance, because what happens ki both are dominant and both will show each other, both will produce their own type of sugar. तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली जब किसी का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होता है तो उनमें ये बोथ आर डोमिनेंट. सो अगर मैं इनका क्रॉसिंग करवाती हूँ तो इन दिस वे आई विल गेट 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट आर दोस. ये आपको देखो, अगर किसी पेरेंट के पास अलील है, अलील फ्रॉम पेरेंट 1 इज IA एंड फ्रॉम पेरेंट 2 इज IA. सो जीनोटाइप क्या मिलेगा? IA एंड IA. सो क्या ब्लड ग्रुप होगा? A पॉजिटिव. इफ
allele from parent 1 is IA and allele from parent B is IB. So what I'm going to get is IA and IB. So blood group will be AB. Similarly for IA and small I is what? So I'll get the blood group because this इन दोनों में dominant कौन होगा? IA होगा तो ऐसा कौन दिखेगा? Express कौन होगा? A दिखेगा, A positive. Similarly, if I talk about the IB and IA, then I'll get IA, IB. So that is AB positive. If I'm talking about IB, then I'll get only B. Then वहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं होता. If I'm talking about IB and I, then क्या मिलेगा? सिर्फ B. ठीक है? और अगर मैं बात करती हूँ small I, तो वहाँ पे तो दोनों ही रिसेसिव है. ठीक है? तो वो तो अपना शुगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो उस समय कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? O. ठीक है? कुछ नहीं दे रखा तो O पॉजिटिव. अभी समझ में आया है कोडोमिनेंस मतलब क्या? कोडोमिनेंस का मतलब होता है अगर दो लोग डोमिनेंट है तो दोनों ही एक्सप्रेस होंगे. यस अंजलि. Yes, ma'am. क्लियर है? और कोई डाउट? No, ma'am. किसी को कोई डाउट नहीं है? नेहा, गायत्री, प्रीति, प्रतीक्षा, सोनाली, कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. सो इसका मतलब मेरी तरफ से चैप्टर डन. सो अभी कोई डाउट नहीं है. सो वी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. कल आप लोगों का टेस्ट है. सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर. कब है एग्जाम वैसे? मॉर्निंग, इवनिंग? एग्जाम कब है? मॉर्निंग, इवनिंग? मैम सर ने बताया नहीं है अभी तक. Yes. Did not yet told. Okay, ठीक है. तो अभी क्या करना है कि I'll start with the new chapter. Before that, आप लोगों को बायोलॉजी में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है या मेरी अंडरस्टैंडिंग में या मेरी टीचिंग में कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे अभी बता दो. सो दैट आई विल इम्प्रूव और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छी हो जाएगी. या कोई फास्ट जा रही हो या कुछ भी. If everything is okay, then we'll proceed. No doubt. कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है. कुछ भी कमी होगी, फास्ट जा रहे हैं कुछ. जो स्कूल में क्या चल रहा है, स्टेटस क्या है? छुट्टियां चल रही है ना अभी तो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. छुट्टियां कब तक है? 20 June. ओके, बहुत है अभी तो छुट्टियां. सो सिलेबस कहाँ तक हो गया? वहाँ पे हो गया क्या प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? No, ma'am. और जो एक स्टूडेंट है ना अपनी जो कॉलेज में भी जाती है उसका हुआ या नहीं? यस. नो मैम, हमारे कॉलेज में भी सेकंड चैप्टर ही चल रहा है बायो का. ओके. कॉलेज में तो यूजुअली यही होता है और एट द एंड वो आपको पूरे चैप्टर्स खत्म करवा देते हैं. सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोग बहुत इजीली और अच्छे से सारे चैप्टर्स को समझ पाओगे. मैंने जैसे आपको पहले ही बता रखा है दैट if you go through my notes thoroughly, then you need not to go for the books because all notes are strictly from the NCERT. And those who are preparing for the NEET, I already told them ki go deep into each and every topic. If you required any help, any suggestion, you can contact me, you can message me. I'll guide you. For guidance, my doors are all. So, and if someone is dreaming for, is there anyone who want to go or do medicals, yeah, MBBS in AFMC? Yes, ma'am. Who is this? I want to know the name. Ma'am Sonali. Sonali. So, are you? Your father is in army, right? Yes, ma'am. So, have you? Do you know what is the cutoff for AFMC?
It is not just for Sonali, those who wanted to go for NEET, those who want to pursue their future into medical, it is for all of them. So do you know what is the cutoff for AFMC? Yes, Sonali, you need to answer me. I'm 650 above, 650 and above. 630 हो गया है, पिछले साल 625 था. इस साल का सर्च किया कि क्या कट ऑफ था पिछले साल का? यस, नहीं सर्च किया. सो आप लोगों को बहुत हार्ड वर्क करनी है एएफएमसी, और उतना तो है. गेटिंग इनटू एएफएमसी इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. If I would say, it is easy. The only thing you need to work on your points, and you need to do smart work, not the hard work. If you are doing hard work, it is of no use. You always do hard work with smartness. ठीक है? और मेडिकल के लिए तो, और यहाँ आपको नीट अच्छे से देना है. नीट में अच्छा स्कोर मिल गया 550 plus, then you would be able to get a good college, because now it become a common exam for both AIMS, AFMCs, like JIPMER. Earlier AIMS and JIPMER conduct their own exams, but now it become common for all of the medical colleges. तो आप लोगों को काफी ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा, and it's very easy to get into AFMC. The only thing, we break our consistency, and we break our consistency. That is the biggest mistake we committed in our life. इसलिए always, and being a medical student, the 3 components that should be there in your life, that is first consistency, second patience, and third hard work with smartness. ये 3 चीजें होगी, then you would able to crack this exam very easily. अच्छा, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ टास्क करने के लिए, अदर देन स्टडीज, डू यू ऑल फॉलो इट? If so, then do you are observing any benefits of it? If so, then please share with me. I would be very happy for knowing this, that it's really working in your life. I won't say name of anybody. Come up by yourself and let me know. Because after this, I'm going to start the new chapter, and it is very important. Don't leave the class. Only 6 students are remaining. After leaving me 5. Where are the 10 students? Only these 5 students are there. Where is Pratiksha? She also left the class. Atharv had not come the class. Sanik also left the class. This is very important. I'm going to start the new chapter. So shall we proceed with our new chapter? Yes? Yes, ma'am. Okay. The new chapter that I'm going to start is, today we'll do the introduction part. The name of the new chapter is the molecular basis of inheritance. In the previous chapter, what we had gone through, in the previous chapter, we had gone through inheritance. We come across what inheritance means, what are different types of inheritance, what is dominant character, what is recessive character. We gone through chromosomal and Mendelian disorders. We come upon knowing about the terms like what is allele, what is trait, what is allelomorph, what is what back test. That is also important. Okay. Now in this chapter, we'll go a bit deep into the thing. We know that what is the structural unit of life, that is gene. So today structural functional unit of life is gene. So now we'll study about gene, how gene is formed, who formed gene, what is DNA, what is RNA. When DNA is converted to RNA, what we called it as. When RNA is converted into protein, what we called it as. When
आरएनए से डीएनए फॉर्म होता है तो व्हाट, सी जनरल एक मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूं तो डीएनए से जब आरएनए फॉर्म होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. देन व्हाट वुड वी से अबाउट इफ द आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए? We will call it as a sense it is a reverse process. I think I had made the central dogma, and that thing is called central dogma. See, see one thing. This is nothing but the central dogma. What it is? See, if DNA, आप लोगों को एक very short सा example दे रही हूँ. अभी ये basic समझ लो. DNA से जब RNA बनता है तो that process is called transcription. When RNA is converted into protein, we call that process as a translation. Okay, and then protein, if RNA is forming DNA, generally RNA से DNA कैसे बनता है? RNA से DNA फॉर्मेशन को हम लोग देखो इधर से जो RNA से DNA बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं, बट नाउ RNA से DNA फॉर्म होता है ना, so this is transcription, but what it is reverse form, that's we called retro or reverse transcription. Okay, DNA से अगर एक DNA से दूसरा DNA फॉर्म हो रहा है, then I'll call it as a replication. Similar in the case of RNA as well. RNA से RNA is replication. तो generally RNA से DNA formation हम लोग किस में देखते हैं? We observe it in viruses, and इसको बोला जाता है central dogma. Get my point? Get my point? Yes, ma'am. Okay, now very important thing. हम लोग इस चैप्टर में ना आपको एक आइडिया दे देती हूँ वॉट एवर थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. फर्स्ट, व्हाट इज आरएनए? सेकंड, sorry, what is DNA? Then what is RNA? How DNA? What is exactly the structure of DNA? What is nucleotide? What is nucleoside? What is polynucleoside? What is phosphodiester bond? How this DNA is formed? कॉइलिंग, डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे होता है. फिर हम क्या पढ़ेंगे? डीएनए, एक स्ट्रैंड डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है. हाँ, उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? उसके पोजीशन किस तरह होती है? फिर डीएनए से वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, हाउ वी फॉर्म वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम द previous strand of DNA. Then we'll study about this thing also. Then we'll study about how this thing ट्रांसक्रिप्शन, हाउ ट्रांसक्रिप्शन हैपेंस. मतलब डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. तो ट्रांसक्रिप्शन विल बी डिफरेंट इन व्हाट? It will be different in prokaryotic and eukaryotic. So how the transcription in prokaryotic, how the transcription in eukaryotic, how it is performed. Then we'll talk about the term called codon. What is codon? Then how that RNA से protein बनता है, that process is called translation. Now how translation proceed, how protein is formed. Then we'll study about different types of what can I say, what is DNA fingerprinting. अब different बहुत पुराने DNA जब निकाले थे तो उन लोगों का किस तरह उन्होंने ओरिजिन कहाँ से हुआ था. उसके बाद अगर मुझे फोरेंसिक साइंस में डीएनए को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, एक फील्ड होती है फोरेंसिक साइंस. देखो सपोज कोई एक मर्डर हुआ है तो उस मर्डर में जो व्हाट आई कैन से, जो विक्टिम नो जिसने मर्डरर है, मर्डरर ने सारे निशान, नामो निशान मिटा दिए हैं. ठीक है, और उसने क्या रखा है? उसने कुछ भी नहीं रहा और गलती से उसका एक हेयर का स्ट्रेन वहां पे गिर गया. मर्डर इज अ फीमेल तो या मेल हो गया, उसका कोई तो हेयर का एक स्ट्रेन गिर गया और वो चला गया. अभी वो एक सिंगल स्ट्रेन से आई कैन डिटरमाइन द ह्यूमन बीइंग. हाउ? इट इज बाय डीएनए. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है जिससे मैं ऑर्गेनिज्म उस ह्यूमन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ. एंड इट इज ऑल मिरेकल्स ऑफ डीएनए. तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर द इन्वेंटर ऑफ द डीएनए. चलो ठीक है, बचपन से 6th 7th क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है दैट डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. ओके, तो पर मुझे ये एक बात
डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ऐसा बताया जाता है ना. सो एवरीवन शुड नो कि वेट सेकंड. Hello. I'm good. I'll call you after some time. I'm in lecture now. Okay, bye. Sorry. Yes. So अगर मैं स्पेसिफिकली डीएनए के बारे में बात करूँ, so डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर चेन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. अभी ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. तो ये सब चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर करवाई दी जाएगी. तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का जो लेंथ होता है इट इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. सो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिफाइंस द डीएनए, लेंथ ऑफ द डीएनए. नाउ एक चीज यहाँ पे दे गिवन यू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन बैक्टीरिया. Bacteriophage is the type of a bacteria. So number of nucleotides is 5,386 and bacteriophage lambda has 48,502 base pairs. Now next thing is Escherichia. इसको एक प्रोनाउंस करने का तरीका है Escherichia coli and it has how many base pairs? It has 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs. Now if I'm talking about human being, then human being has 3.3 into 10 raised to power 9 base pairs. ठीक है. ये तो अभी आपके जनरल नॉलेज के लिए बिकॉज दे आस्क क्वेश्चंस कि क्या है इनका न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर. देखो यहाँ पे गौर से देखना, ये डीएनए का स्ट्रैंड है. अभी तो आपको सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए मैं आपको ये ऐसे समझा रही हूँ, अदरवाइज आप लोगों को स्ट्रैंड दिखाया जाएगा. तो स्ट्रैंड में देखो ये वाला ना, सपोज इस तरह दो स्ट्रैंड्स होंगे. सो दिस विल बी 5 dash, this will be 3 dash. ठीक है. सो इसके नीचे वाला स्ट्रैंड जो होगा दैट वुड बी अपोजिट ऑफ इट. अगर अभी यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 होगा. ठीक है. एंड दिस विल बी 5 dash. ठीक है. This would be 5 dash and this would be 3 dash. This would be इसका ऑपोजिट होता है 3 dash and 5 dash. इसमें ये जो है ना, ये लाइन जो है is nothing but these are the acids, amino acids. ये amino acids ही होते हैं. यहाँ पे दिया है या ये वाला समझो पहले आप. मैम. हाँ बोलो. मैम your screen is not visible. It is not visible to anyone. Ma'am is No, showing ma'am, it's dominance. Sorry. Visible, ma'am. Ma'am is showing codominance. Why it is happening so? It is happening to whom? Is it happening to Anjali? या मेघा? मेघा. OMG. Wait a sec. I'll try it once again. Now, can you able to see molecular basis of inheritance? Yes, ma'am. Now, to Yes, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Okay. तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आया अभी तक बताया मैंने? Be frank. If not, then we'll proceed with the first. ठीक है. बोला हुआ तो समझ में आया ना? Yes, ma'am. Okay.
चलो ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को बताया डीएनए का मतलब आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है ना। सो यहाँ डीएनए का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताओ। यही होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बट देखा जाए तो इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ deoxyribonucleotides. So generally, how we can define the length of DNA? Length of DNA usually defined by the number of nucleotides associated with it. Okay. So the more the number of nucleotides, the more will be the more length of the DNA. ठीक है. If I'm talking about a bacteriophage, so in bacteriophage, how many nucleotides are there? 5,386 nucleotides are there. If I'm talking about the Escherichia coli, it is also a type of a bacteria. So how many base pairs are there? So there are 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs are there. If I'm talking about what I can say, Escherichia coli, then it has 4.6 into 10 to the 6 base pairs. अगर वही मैं बात अपने ह्यूमन बींग्स की करूं, then they how many base pairs are there? 3.3 into 10 to the power 9. Now एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने तो बोल दिया कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है लॉन्ग पॉल, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या है? सो देखो, शुगर तो पता है ना, शुगर क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, इजंट इट? सो अभी शुगर में अगर मैं नाइट्रोजन बेस ऐड कर दूंगी, ठीक है, अभी इसमें नाइट्रोजन बेस क्या होंगे? देखो, शुगर नाइट्रोजन बेस कैन बी प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स. प्यूरिन्स में दो टाइप्स के नाइट्रोजन बेस होते हैं, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन, याद रखना है, ठीक है. और पिरामिडिन में साइटिन, यूरासिल एंड थाइमिन, ये तीन टाइप के पिराडिन्स होते हैं, पिरामिडिन्स होते हैं, एंड दीज आर नथिंग बट द नाइट्रोजन बेस. तो अगर मैं शुगर में नाइट्रोजन बेस ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड. प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनो. अगर मैं शुगर में, यहाँ पे अगर आप कुछ बुक पेंसिल लेके बैठे होंगे तो प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट. अगर मैं शुगर में, बिकॉज दिस इंट्रोडक्शन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ में आ गई ना तो आगे का पार्ट जो है, थोड़ा आगे का पार्ट, दैट इज वेरी इजी, तो उसमें मुझे ज्यादा नहीं समझाने पड़ेगा, इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन में एम्फसाइज कर रही हूँ. और बच्चे भी कम है ना, इसीलिए ज्यादा कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम से मिस ना करें. ओके. तो देखो, अगर मैं शुगर में नाइट्रोजन बेस ऐड करूँ तो मुझे न्यूक्लियोसाइड मिलेगा, SIDE, न्यूक्लियोसाइड्स मिलेगा. अगर मैं शुगर में नाइट्रोजन बेस ऐड करूं और मैं उसमें फॉस्फोरिक एसिड ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, TIDE, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा. समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा मुझे बताओ, न्यूक्लियोसाइड मतलब? न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर और नाइट्रोजन बेस. व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? अभी तो बताया मैंने, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ, न्यूक्लियोसाइड मतलब? अभी बताया मैंने. न्यूक्लियोसाइड मतलब यस गर्ल्स, यस अंजलि, गायत्री, मेघा, प्रीति, सोनाली. न्यूक्लियोटाइड मतलब
न्यूक्लियोटाइड मतलब It's a sugar molecule which is attached to nitrogen group base. सीधा सिंपल लैंग्वेज में आपने बिल्कुल सही बोला प्रीति, बट आप सीधा बोल दो ना, क्यों इतना घबरा रहे हो सब लोग? 5 स्टूडेंट्स और घबरा क्यों रहे हो? नाइट्रोजन बेस में शुगर ऐड कर दो, न्यूक्लियोसाइड मिल गया, और उसी में अगर मैंने फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दिया तो मुझे न्यूक्लियोटाइड मिल गया। सिंपल ना? Why taking so much of time? Next thing, अब वो नाइट्रोजन बेस कैन बी ऑफ 2 टाइप, प्यूरिन्स एंड pyrimidines. Purines can be adenine and guanine. Pyrimidines can be cytosine, uracil and thymine. ये 3 टाइप के होंगे, ठीक है? So basic how to remember this thing? AG, देखो AG कट याद रखो, AG and CUT कट. So purines में AG होगा, adenine and guanine, और pyrimidine में cytosil, uracil and thymine. समझ में आया? Yes, ma'am. ये सही है। अभी 5 से 4 हो गए। I'll note this name only. I'll take a screenshot of it and I'll put on group. And I'll send this thing ना to your parents. जो रेस्ट लोग नहीं आए ना उनका मैं देखती हूँ फिर। नेक्स्ट थिंग, तो ये आप लोगों को याद रखना है, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। This is important. Also, you have to remember the number of nucleotides in bacteriophage lambda. अभी समझ में आया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, तो ये जैसे मैंने बताया था आपको, since I don't have pen ना, इसलिए ये बहुत ही अच्छी डायग्राम नहीं है। तो अभी देखो, आप लोगों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है? आज घर जाके ना, सॉरी घर पे ना, अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद ना 2 चीजें ध्यान में रखो। पहले तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, दूसरा राइबोस का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है? ये जो है ना राइबोस का स्ट्रक्चर है, ये जो है ना, ये जो है ना, ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। दिस इज ऑफ राइबोस, दिस इज ऑफ राइबोस का स्ट्रक्चर है। नाउ ये जो है राइबोस में अगर आपने देखा होगा तो नीचे OH होता है, ऊपर CH2 होता है। नाउ यहाँ पे अगर मैं देती हूँ दिस थिंग, ये क्या है? ये फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है? तो फॉस्फेट ग्रुप जब लगता है ना, तब दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों क्या शेयर करते हैं? अपना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन शेयर करते हैं और वाटर रिमूवल करते हैं। तो दोनों में जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज डाइस्टर बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म हुआ है, दिस बॉन्ड इज डाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? डाइस्टर बॉन्ड। डाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है? तो this bond is called the diester bond. Now see, this is phosphate group, so 5 dash. This is hydroxyl group 3 dash. So इसके opposite यहाँ पे कौन सा होगा? 5 dash. यहाँ पे कौन सा होगा? 3 dash. अभी
कि देखो मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट हैज 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा अभी आप लोग बताओ। नाइट्रोजन बेस होगा और क्या क्या होगा, पेंटोज शुगर होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा। 2 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन। सो एडेनिन एंड ग्वानिन, और प्यूरिन्स में क्या है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। अगर एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये किस में कॉमन है, दे आर कॉमन फॉर बोथ व्हाट, डीएनए एंड आरएनए। नाउ यूरासिल देखा जाए तो यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। देखो यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक है, इन प्लेस ऑफ थाइमिन। अभी देखो नाइट्रोजन बेस जो है, जैसे मैंने आपको इधर बताया 5' और 3' का सिस्टम, अगर मैं बोलूं कि देर आर 2 types of nucleosides, then they would be ribonucleosides और deoxyribonucleoside। राइबोन्यूक्लियोसाइड में क्या आएगा और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, क्योंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड्स में एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन एंड यूरासिल, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड में डीऑक्सी एडेनिन, एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडिन एंड डीऑक्सी थाइमिन। देखो अभी वही जो मैंने आपको समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर इस डायग्राम में देख रहे हो, इस डायग्राम में तो 5th पोजीशन पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। दिस इज व्हाट 3rd पोजीशन पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। जो बॉन्ड 2 राइबो शुगर के बीच में बन रहा है दैट इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटिडिन, साइटोसिल। तो देखो यहाँ पे phosphoric acid is attached to the 5' end of the nucleoside by the phosphodiester linkage and corresponding nucleoside formed। ये मैंने आपको समझा दिया। देन देखो मैंने जैसे बताया कि 2 जब न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड बाय 3' और 5', जैसे जब 2 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो रहे हैं तो उनके बीच में जो लिंक फॉर्म हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो इनके लिए तो यहाँ पे ये कौन सा है नंबर 3' और इनके लिए ये होगा 5'। ये दोनों जो फॉर्म हो रहे हैं ना, ये दोनों इज व्हाट, दे आर फॉर्म्ड and attached to each other by which bond, phosphodiester bond। then यहाँ पे देखो जब 2 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स जो है ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, पॉली। एक मतलब मोनो, 2 मतलब बाय, और अगर बहुत 1-2 से ज्यादा है तो आई यूज द वर्ड पॉली। So more than 2 nucleotides are joined to form the polynucleotides। ठीक है, so phospho ये polynucleotide chain has a free phosphate moiety at 5' end of the sugar end। ठीक है, तो at the end of polymer वहां पे 3' जो है that is 3' पे OH है, so I'll called it as a 3' end। ठीक है, 4 ये 5' पे क्या था मेरा, फॉस्फेट ग्रुप था।
अगर बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड शुगर न्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें तो क्या है, शुगर है. These are what? These are what? These are sugar ना. These are what? These are sugar. और इन दोनों के बीच में कौन सा है, फॉस्फेट बॉन्ड है. तो ओवरऑल बोला जाए तो बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज चेन इज sugar and phosphate. Nitrogen base linked to the sugar moiety project to form the backbone. RNA में देखा जाए तो OH ग्रुप क्या है, 2' में लगता है. RNA में अगर अभी अपने RNA का स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो RNA में यूरासिल होता है थायमिन की जगह. ठीक है, तो 5 मिथाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी आ चुका है. 5 मिथाइल यूरासिल का दूसरा नाम क्या है, थायमीन है. क्या नाम है, थायमीन है. नेक्स्ट, हिस्ट्री. जो साइंटिस्ट पहला था जिसने एक्टिविटी परफॉर्म करवाई थी, तो जिसने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड किया था डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है. जब उन्होंने न्यूक्लियस में इसको फाइंड किया था तो दैट टाइम ही कुड नॉट एबल टू गिव द नेम एज द डीएनए, सो ही कॉल्ड इट एज अ न्यूक्लियन बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, सो ही कॉल्ड इट एज अ न्यूक्लियन. ठीक है. सो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट को आगे परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उनके एक्सपेरिमेंट को ही किसने आगे लेकर गए, दैट इज जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. ठीक है, और बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया फॉर एनालाइजिंग देम, एग्जामिनिंग देम के लिए दे रिक्वायर्ड द माइक्रोस्कोप एंड दैट माइक्रोस्कोप वाज प्रोवाइडेड बाय द Buris Wilkins and the Rosalind Franklin. They give the information based on that. अब देखा जाए तो how can we describe those two strands? ठीक है. So this observation was made by Irving Chargaff. So adenine, thymine, guanine, and cytosine, they are constant. They are constant and equal to 1. So two strands of DNA are complementary. Complementary means suppose if A plus T is equal to A plus G is equal to T plus C. So A will form bond with the T and G will form bond with C. So I can write A is equal to T and G is equal to C. ठीक है. So if I add on A plus T upon G plus C, here if I say A is equal to T, so can I write 2A, and instead of G is equal to C, can I write 2G? So both if C, then both are same, the both are constant and both are different for the different species, right? देखो अभी यहाँ पे they have given you the silent features of double helix structure of DNA. अभी तो हम लोगों ने बहुत चीजें पढ़ी है. देखो सबसे पहले बात हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि पहली बात तो डीएनए जो है वो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. एंड बैकबोन क्या है डीएनए का, शुगर एंड फॉस्फेट. ठीक है, और देखा हम लोगों ने कि दो चेन्स जो है, दो चेन्स की पोलैरिटी इज डिफरेंट. अगर एक की 3' एंड 5' है तो दूसरी की पोलैरिटी इज 5' 3' है, ऑपोजिट होती है. ठीक है. दूसरा चीज और देखा हम लोगों ने कि जो दो चेन्स है ना, दो स्ट्रेन्स जो है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इन क्लोज कनेक्शन विद ईच अदर. सो हाउ दे आर क्लोज टू ईच अदर, दे आर हेल्ड एंड दे आर बाउंडेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. और हम लोगों ने एक चीज पढ़ी दैट ए जो है, एडेनिन ऑलवेज फॉर्म्स बॉन्ड विद थायमीन, guanine always form bond with cytidine. ठीक है, दैट इज व्हाट. यहाँ पे देखो और एक चीज याद रखना है, जब एडेनिन ये एडेनिन फॉर्म बॉन्ड विद द थायमीन ना, देन इट रिक्वायर 2 हाइड्रोजन, whereas if guanine form bond with cytidine ना, cytidine,
So that time it formed bond, and that bond is the triple bond. Adenine ATGC. So adenine से thymine में double bond, and guanine से cytosine में triple bond. ये याद रखना है. अगर देखा जाए pitch, now आपको पता होना चाहिए what is pitch. So आप लोग पढ़ते हो pitch. किसी को पता है pitch क्या होती है? मैच देखते हो? पिच का मतलब होता है कि एक स्पाइरल के बीच में का डिस्टेंस क्या होता है. ठीक है, अभी आपको जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है ना डीएनए, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगी. तो जनरली जो डीएनए का पिच होता है ना, उसका पिच है 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम. तो जनरली 10 बेस पेयर्स होते हैं एक टर्न में. ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत जरूरी है, पिच कितनी है वो याद रखना है. And distance between the base pairs. ठीक है, अब देखो, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड कंफर्म करता है स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, नो, सो इट कंफर्म द स्टेबिलिटी of the helical structure of the DNA. And this is what I shown you, the central dogma. And central dogma is DNA से RNA, that is transcription, RNA से protein, that is translation. If one strand of DNA is producing another strand of DNA, then it is called replication. If RNA is converted into DNA, then it is called reverse transcription. ठीक है, this is what happens in the central dogma. Next thing is packaging of the DNA helix. So packaging of the DNA helix, अब ये packaging कैसे होगी? So generally DNA helix की packaging किस तरह होती है? There are two types in packaging. तो generally अगर दो conjugated base pair का distance जो है यहाँ पे DNA में is 0.34 nanometer. And length है ये important है कि जो mammalian में cell है उसमें DNA की length क्या है? ठीक है, this is important. Okay. एक चीज याद रखना, अगर मैं पैकेजिंग की बात करती हूँ तो अभी हमेशा वी हैव टू डील विद द टू टाइप्स ऑफ सेल. टू टाइप्स ऑफ सेल्स मतलब यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में पैकेजिंग किस तरह होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसे. यूकैरियोटिक्स मतलब पी ह्यूमंस एंड प्रोकैरियोटिक्स मतलब बैक्टीरिया. So bacteria में अगर if I'm talking about the nucleus, तो generally they do not have a definite nucleus, right? And their DNA is scattered. उनके DNA जो होता है definite nucleus तो नहीं होता, but the DNA is not scattered around throughout the nucleus, throughout the cell. Now DNA is held with particular protein, and that protein is called protein in the region called what? Nucleide. उस region को क्या बोलते हैं? Nucleide. And we all know that DNA is a negatively charged and RNA is a positively charged. So DNA generally held. How they held? They form large loop around the proteins. अभी वही ये इसी में देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक्स में जनरली दे डू नॉट हैव डिफरेंट न्यूक्लियस. ये चीज याद रखनी है. सो डीएनए पूरी तरह से स्कैटर्ड नहीं होता है. दे held together with some protein in a region जिसको हम न्यूक्लियड बोलते हैं. अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया है, आर यू क्लियर विद इट? क्लियरली समझ में, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक थिंग. अभी तो 4 ही बचे. समझ में आया? Yes, ma'am. पक्का? अंजलि? यस अंजलि, समझ में आया? सोनाली समझ में आया? Yes, ma'am. So I feel now we should stop here.
and the next lecture में we'll be discussing about जो भी इसके आगे होगा. So अभी मुझे एक चीज बताओ that होमवर्क आपको क्या दिया जाए. सी होमवर्क तो जो मैंने आप लोगों को बताया ना वो करना है आपको प्रॉपरली. वो क्वेश्चंस भी लिखो. हाँ, क्वेश्चंस लिख के आप लोगों को उसका क्या सेंड करना है. You have to send that on the Google Classroom. Last time only one girl had shown me send that. So everyone should send this that thing to me. और कोई प्रॉब्लम है स्टडीज में, कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर अभी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विद मी. कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस. No, ma'am. So shall we stop here? Should we stop here now? Yes, ma'am. Okay, then you can leave the class. Thank you so much for today.